Hello friends, this is our third lecture of inequalities and absolute values. Friends, I hope आपने previous दोनों lectures के videos आपने देखे हैं अच्छी तरीके से, और अगर आपने नहीं देखे हैं, कुछ अगर आप नए subscribers हैं, so guys please मैंने description box में previous videos का link मैंने वहाँ पे copy किया हुआ है, paste किया हुआ है. आप उन्हें मतलब जाके उसे पहले से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. And here we are starting with the third lecture of inequalities and absolute values here. Guys, in the previous lectures we have completed about constant, variables, functions and some questions on them, depending on them. And in the previous lecture, intervals. And now we are starting with what? The inequality. What is the meaning of inequality, friends? Inequality, just think about it. कोई भी आप दो ऑब्जेक्ट लीजिए, किसी भी दो चीज़ के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हो, if you compare between any two objects there, suppose A and B, so it can be taken in two different ways. एक तो आपका वो three different ways. एक तो वो equal हो सकते हैं, या फिर A B से less हो सकता है, और A can be greater than B. So these three kind of relation we can put in between any two objects there. Guys, we are talking about what? We are talking about inequalities. Unequal, not equal. So yes, we are not talking about A is not equal to B. So what? So either A is less than B or A is greater than B. So here we are talking about these inequalities here. Guys, अगर कभी आपके सामने इस तरीके से दिखाई दे A less than or equal to B, so this is not an inequality, this is called as inequation, because equal sign is also used over there. So inequation this is called, guys. Yeah, उसी तरीके से A greater than or equal to B. So yes, this is, if this is called what? Equality. If this is cancelled, not equal, so these things will come over there. ये चीज़ें वहाँ पर आएंगी. Inequalities and inequations. So guys, we have some important facts regarding inequalities here. Let's understand them one by one here. What is our first one? If you see A less than or equal to B, so guys, you have to understand what? A is either less than B or A is equal to B, and similarly in case of greater than. So I have not written that, but you can understand it. Yeah, in same case. I mean, मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप समझ जाओगे यहाँ पर. इसका मीनिंग क्या होगा? A greater than or equal to B. Okay. What about second one? Second fact है A less than B अगर है और B किसी और से छोटा है, A B से छोटा है और B किसी और से छोटा है, so obvious सी बात है, it's a transition. A less than C. A C से less होगा, obviously. If I say 1 is less than 2, 2 is less than 3, तो obviously 1 is less than 3. No doubt about that. Yeah. What is the third fact here? We have to understand. Guys, if A is less than B and we are said to multiply negative number to both the side. Negative value से अगर आपको multiply करने के लिए कहा जाए दोनों साइड में, I mean A की साइड में भी B की साइड में भी, so it will become minus A minus B, and always be careful, its sign is going to change here. What is here? Less than. Now it will become here, guys. So आप देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 is less than 3, but if you multiply both the side by minus, it will become minus 2, it will become minus 3. Now say which one is less now? Yes, minus 3 is less than minus 2, so minus 2 will become what? Greater. आप इसको नंबर लाइन पे भी इसको समझ सकते हैं. minus 2 अगर यहाँ पर आएगा तो minus 3 आपका यहाँ पे आएगा, so minus 3 minus 2 से less हो जाएगा. As you move towards the left, the value becomes lesser. That means it decreases, you can say, कम होता है उसका value. So when you multiply both the side by negative, it will get decreased, or you can say its sign will be changed here. हाँ, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, I mean अगर आपके पास 2 is greater than 1 है, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर I mean 5 से सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, so it will be 5 2s are 10, 5 1s are 5, obviously 10 is greater than 5. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे. So if you multiply and divide, देखो मैं डिवीजन के केस में भी बताता हूँ करके मैं, इट इज़ वर्किंग नॉट ओनली इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में ऐसा ही सेम वर्कआउट करता है ये. अगर आप दोनों ही साइड में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो
तो साइन विल गेट चेंज्ड, दैट मीन्स लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन. एंड इफ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई पॉजिटिव नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो साइन विल नॉट गेट चेंज्ड, साइन वैसा का वैसा ही रहेगा. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. व्हाट अबाउट फोर्थ वन गाइज हियर, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी. सो गाइज ए बी से छोटा है, सी डी से छोटा. ऑब्वियस सी बात है, यू कैन ऐड द टू साइड्स ऑफ द टू इनइक्वलिटीज हियर. सो ए प्लस सी एंड बी प्लस डी. ऑब्वियसली जो लेस अमाउंट है वो लेस ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेटर को ग्रेटर से जोड़ रहे हैं और छोटे को छोटे से. सो ऑब्वियसली ए प्लस सी विल बी लेस देन बी प्लस डी. और अगर आप डी को इस साइड लेके आओ, सी को उस साइड लेके जाओ, यस, तभी भी साइन कोई चेंज नहीं होगा. आई मीन आपके साइड चेंज करने से ये साइन चेंज नहीं होता. कहने का मतलब ये है कि इफ़ आई से ए प्लस बी इज़ लेस देन 3 + 4, तो आप साइड चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है. ए -3 लेस देन 4 - b, नो प्रॉब्लम, साइन विल नॉट चेंज हियर. साइन साइड चेंज करने से नहीं चेंज होता. हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से, वो भी किससे, वो भी आप किसी नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो चेंज होगा. यस फ्रेंड्स, हियर वी हैव नेक्स्ट फिफ्थ वन. आप यहाँ पे देख सकते हैं a एंड b, a इज लेस देन b and both are greater than 0. That means we are talking about positive numbers. If a and b both are positive, उनके बीच में लेस का साइन है, a less than b है. So we have two conditions here. If r is greater than 0, आप पावर लीजिए, आप कोई भी पावर ले लीजिए, you take any power of these two sides here, the sign will not change. लेस है तो लेस ही रहेगा, लेकिन कब, अगर पावर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो. फॉर एग्जाम्पल, if I say 2 less than 3, both are positive here, and if you get square both the side, और कोई भी पावर आप ले लीजिए, 2 का पावर 2 suppose 4, 3 का पावर square 9, so 4 is less than 9. Yes, you take any power but positive. If your power is positive, r is positive, so it will not get change, ये change नहीं होगा. लेकिन फ्रेंड, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से, आई मीन आप जैसे कि यहाँ पर आपका जो पावर r है वो नेगेटिव है, योर पावर इज़ नेगेटिव, आई मीन आपने बोला जैसे 2 > 3 है और आप ले रहे हो पावर 2 raised to -2, 3 raised to -2, अगर आप पावर ऐसा ले रहे हो, सो गाइज ये साइन चेंज होने का यहाँ पे चांसेस है. क्यों? बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 raised to -1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/9. सो गाइज थिंक अबाउट इट, which one will be greater here? Yes, this one will be greater. तो वहाँ पे पहले क्या था, पहले वहाँ पे लेस देन था, लेकिन जब आपने पावर -2 लिया तो इट बिकेम व्हाट, 1/4 ग्रेटर देन 1/9. यस, तो अगर आप पावर नेगेटिव लोगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा. सो इफ a एंड b हैव लेस देन साइन, a लेस देन b आर पॉजिटिव, तो ये आर नेगेटिव, तो फिर साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा. आपका नेक्स्ट आपका इनइक्वालिटी है स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी. आप जब स्क्वायर करते हो दोनों साइड में, जैसे आपने यहाँ पे देखा क्या इफेक्ट होता है कोई भी पावर लेने पे, बट हियर वी आर टेकिंग व्हाट, जस्ट स्क्वायर. स्क्वायर लेने से क्या मतलब, साइन चेंज होता है कि नहीं. इफ a लेस देन b देन a² लेस देन b², या ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा. डज नॉट फॉलो ऑलवेज, ये बात हमेशा फॉलो नहीं होती है. आप फॉर एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, तो जैसे कि मैं इनको रब कर देता हूँ ज़रा, क्योंकि ये बातें हम समझ चुके हैं, तो थोड़ा हमारे पास जगह हो जाएगी फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे a लेस देन b, तो स्क्वायर करने पे लेस देन ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा 2 लेस देन सपोज 4, ऑब्वियसली 2 लेस देन 4 है. नाउ स्क्वायर इट, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ऑब्वियसली ये लेस है, ये लेस रहेगा. लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ इट इज -5 एंड हियर इट इज 3, ऑब्वियसली -5 3 से क्या है, छोटा है. लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे, -5 का स्क्वायर इट विल बिकम 25, एंड व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3? इट्स 9. नाउ विच वन इज ग्रेटर? या 25 इज ग्रेटर देन 9. साइन इट वॉज लेस देन, अब क्या हो गया, आप देख रहे हैं. सो यस, कहने का मतलब
इफ a इज लेस देन b, हो सकता है a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, या दिस इज दैट कंडीशन, दिस इज दैट कंडीशन। लेकिन एक बात हमेशा फॉलो नहीं होती, आपके सामने एक एग्जांपल है यहाँ पर। सो गाइज ये आपका रहा स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी का, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारा 8वां है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, यस ऑल ऑफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट। रेसिप्रोकल का मीन्स क्या हुआ, यू आर टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द टू साइड्स, यू कैन से। जैसे आप यहां पे देख रहे हो a इज ग्रेटर देन b एंड बोथ आर पॉजिटिव, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। इन दोनों ही केसेस व्हेन यू टेक द रेसिप्रोकल, अगर आप उसका उल्टा करोगे सो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से 2 इज लेस देन 3, बट व्हेन यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ ऑफ देम, अगर आप दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे सो ऑब्वियस सी बात है 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/3। यस, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दैट्स वाई 2 और 3 a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, 2 एंड 3 बोथ आर पॉजिटिव। जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, उनका रेसिप्रोकल लेंगे आप, तो आपका ये साइन चेंज हो जाएगा, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए, सॉरी आप यहाँ पे सेकंड वाला बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, a एंड b इज लेस देन 0, a एंड b लेस देन 0। यस, यही बात वहाँ पर भी होती है। इफ a एंड b बोथ आर नेगेटिव, लाइक -4 is less than -2 suppose, obviously -4 is less than -2, and when you take the reciprocal to both the side, 1/-4, 1 yeah you can write this like this, माइनस को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, -1/4 -1/2। now you can guess here guys which one is, yeah, -1/4 will become what, greater than -1/2। तो साइन विल चेंज हियर ऑल्सो। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं and you take the reciprocal, so sign between them will get change, उनके बीच का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। Now friends, थर्ड वन हमारा क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में थर्ड लॉ क्या है कि when a and b both are, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो जरा सोचो, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हमेशा ही पॉजिटिव से लेस होगा ना, नेगेटिव वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन पॉजिटिव वैल्यू। आप उसका रेसिप्रोकल लोगे फिर भी उसका नेगेटिव तो चेंज होगा नहीं। आई मीन मैंने क्या बोला, -3 इज लेस देन 5, -3 5, ये नेगेटिव है, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर रहेगा नेगेटिव से। अब इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, -1/3 एंड 1/5। गाइस ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज ग्रेटर अगेन, साइन विल नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज। यस, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों के बीच का साइन चेंज नहीं होगा, और ये वैल्यू जो है देख रहे हैं आप, साइन चेंज नहीं हुआ इसका। सो दिस इज द थर्ड। नाउ फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको हमको ध्यान से समझना, बिकॉज ये चीज़ें बार बार हमको कंफ्यूज कर सकती है, हमारे सामने जरूर रहेंगी ये। क्या कहने का मतलब है, x बिलोंग्स टू a, b, वो भी क्लोज इंटरवल a, b, तो इसका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल जो है 1/x जो है, दैट विल बिलोंग्स टू 1/b, 1/a। 1/x बिलोंग्स टू 1/b, 1/a कब, इफ a एंड b बोथ हैव सेम साइन। अगर a और b दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आपका 1/x सीधा इनका उल्टा हो जाएगा। यस, कहने का मतलब ये है कि सपोज योर x बिलोंग्स टू 2 to 3, तो जो 1/x है फ्रेंड्स, 1/x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इसका 1/3 एंड लेस देन, ऐसा क्रॉस हो जाएगा। सपोज योर x बिलोंग्स टू -3 to -1, या -3 to -1, सॉरी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा, बिकॉज यहाँ पे इंटरवल कौन सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। हियर ऑल्सो गाइज, यहाँ पे भी जो आपका 1/x है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स -1, एंड लेस देन और इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स -1/3। देख रहे हैं,
इसका पहले 1/b पहले आ जाए और फिर बाद में इसका 1/a। यस, ओके। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों के पास अपोजिट साइन है, आई मीन एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, लाइक जैसे कि ऐसे मान लीजिए -5 to 10, a इज नेगेटिव, b इज पॉजिटिव। तो इसमें बहुत सिंपल आप करेगा ये, आप इसको चाहो तो लाइन पे जाके इसे रिप्रेजेंट करके देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पे समझ में बहुत आसानी रहेगा। -5 सपोज यहाँ पे 10 है, सपोज यहाँ पे 10 है, तो इसका उल्टा आपका x कहाँ पे, यहाँ पे है, आपका x यहाँ पे है, ठीक है। सो इसका उल्टा जो आपका 1/x है, द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, वो ये वैल्यू नहीं लेगा, ये वैल्यूज नहीं लेगा, वो कौन सी वैल्यूज लेगा, ये वैल्यूज -∞, +∞, तो ये जो वैल्यूज हैं वो ये वैल्यू ले सकता है 1/x। तो 1/x विल बी ग्रेटर देन, या फिर 1/x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो 1/x रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू -∞ to -1/5। यस, इसका रेसिप्रोकल -1/5। सो -∞ to -1/5 यूनियन, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/10, और इसका क्या हो जाएगा, यस 1/10 to ∞। इसका रेसिप्रोकल 1/10 to ∞। वेरी सिंपल गाइस, a, b, सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a, इसका क्या हो जाएगा 1/b to ∞, यस, -∞ to 1/a एंड 1/b to ∞। सो एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ इसका, जैसे कि मान लीजिए आपका -2 से लेके 3 आपका यहाँ पे ओपन इंटरवल है। अगेन बिल्कुल वैसा ही, सपोज योर x बिलोंग्स टू -2,3, सो देर आपका 1 जो x है दैट बिलोंग्स टू, यस बोलिए सही बात है, यस -∞ to, या कम ऑन, इसका रेसिप्रोकल -1/2, और यहाँ पे क्या रहेगा ओपन इंटरवल, यूनियन 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3 to ∞। बहुत सिंपल है। यस, इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि -2 और 3 के बीच में 0 आता है, आप देख सकते हैं। अगर इसको ग्राफ के वे से समझना चाहते हैं तो इनके बीच में 0 आता है। सो गाइस, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो -2 to 0 और दूसरा आपका है 0 से 3, ये इसके 2 पार्ट हैं। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल गाइस क्या हो जाएगा 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। गाइस यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे -∞ होगा, बिकॉज हम यहाँ पे -2 to 0, मतलब हमारा वैल्यू क्या है 0 से कम है। देखो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट मतलब 0 इक्वल टू नहीं है, 0 से कम है, तो -∞ विल बी, इसका रेसिप्रोकल -∞ जो कि इधर आता है, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/2। सो -∞ to -1/2। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 1/0 विच इज पॉजिटिव हियर, ये 0 से बड़ा वैल्यू है, ये ग्रेटर दैन 0। सो 1/0 विल बिकम व्हाट पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड 1/3 तो इस बात को आप यहां पे डायरेक्टली भी कर सकते थे -2,3। सो यस, -∞, इसका उल्टा कर दो -1/2, और इसका उल्टा 1/3 से लेके कहाँ तक इन्फिनिटी तक। बहुत सिंपल है गाइस। तो आगे एक और एग्जांपल इसका ले लीजिए, ताकि ये थोड़ा आपको अच्छे से कंफर्म होना चाहिए, दैट्स वाई। तो सपोज मैंने बोला -6 to 12, यहाँ पे सपोज क्या है आपका ओपन इंटरवल है गाइस, योर x बिलोंग्स टू दिस। तो वेरी सिंपल, आपको फटाक से इसको निकाल लेना चाहिए, कभी भी आपके सामने दिखाई दे। सो गाइस 1/x क्या होगा, 1/x बिलोंग्स टू व्हाट, यस -∞ टू व्हाट, इसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, दैट्स वाई यहाँ पे क्लोज रहेगा। ओके, यूनियन 12 का रेसिप्रोकल 1/12, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, दैट्स वाई हियर इट विल बी व्हाट ओपन ब्रैकेट, एंड व्हाट इन्फिनिटी। ये आपको याद रहना चाहिए ऐसे।
यस ऑल ऑफ यू। तो दोनों ही चीज़ें आपको ये फटाक से निकालने आना चाहिए। सो नाउ विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो गाइज लेट्स डू सम प्रैक्टिस हियर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। वही 7th वाला जो हमारा प्रॉपर्टी था इनइक्वालिटी का। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर फाइंड करना। अगर हमको एक्स के वैल्यूज दे दिए जाए तो हमको एक्स स्क्वायर फाइंड करना। हमारे एक्स स्क्वायर क्या होंगे? सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। First one, it is x less than 2. Your value of x is less than 2. So guys, whenever you are said to find x square 1 upon x or whatever in inequality case, आपको पहले अच्छी तरीके से इसका मीनिंग लिखना है। इसका मीनिंग क्या है exactly? What is the meaning of x less than 2? So guys, x less than 2, that means उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन उससे नीचे x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो लेफ्ट में आप समझ रहे हो what is the maximum to the left क्या है? माइनस इन्फिनिटी। सो येस, योर x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू 2। आप इसको अगर ऐसे रियल लाइन पर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें, सो हियर इट इज माइनस इन्फिनिटी, हियर इट इज 2। येस, यू आर नॉट टेकिंग दिस वन। या नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, 2 से लेफ्ट में तो आपका क्या क्या आ सकता है? 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करोगे, सो व्हाट विल बी द मिनिमम? यस, 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 विल बी द मिनिमम वन। एंड यस, व्हाट विल बी मैक्सिमम? गाइस यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो प्लस इन्फिनिटी। या सपोज अगर आपको लगता है कि नहीं -2 सर उसका स्क्वायर 4, तो उसके पहले -3 भी तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। So yes, minus infinity का square plus infinity, so minimum value is 0 and maximum value is what? Plus infinity. So yes, your x square belongs to minimum value 0, maximum value plus infinity. चलिए, शायद आपको यहाँ पे समझ में ना आया हो, एक और चांस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं हम वहाँ पे। Yes, it is saying x is greater than -1. Again friends, again define it properly. -1 will be the minimum value और इससे बड़ा, so obviously, और at the end of infinity it is actually unknown, so obviously open bracket will be there. and यहाँ पे भी क्या बोला है? greater than, just not equal to, just greater than, so open bracket यहाँ पे रहेगा। आप जानते हो, आपने इंटरवल पे समझा हुआ अच्छी तरीके से प्रीवियस लेक्चर में। yes all of you, -1 to infinity, वही बात फिर से होती है। आप इसको अगर लाइन पे देखेंगे यहाँ पर, तो -1 बीच में 0 आएगा एंड इस तरीके से आपको जाना है x का वैल्यू लेके। सो आपका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? अगर आप स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा आपका? यस, -1 का नहीं, -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, isn't it? Every negative value becomes positive after taking its square. Yeah, so 0 will be the minimum value here. 0 will be the minimum value here. And what will be maximum value guys here? Maximum value आपका क्या हो जाएगा? Infinity. So here again your x square belongs to, guys यहाँ पे कैसा है? belongs to what? 0 to what? infinity. x square belongs to 0 to infinity. Let's talk about third one here. What is the third one here? Third one is x greater than or equal to 2. X greater than or equal to 2. Yes friends, x greater than or equal to 2. Now just think about it. Yes all of you, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। वो क्या कि यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका 2 आपका मैक्सिमम वैल्यू था, तो उसको हम नहीं ले सकते थे। लेकिन जो स्क्वायर वैल्यू है उसमें 0 का स्क्वायर तो हमको 2 तो -2 के बीच में 0 तो आपको आ ही रहा है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 इन्वॉल्व हो जाएगा, isn't it? यहाँ पे 0 आपका इन्वॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 0 क्या रहेगा आपका? यस, बिकॉज -1 से इन्फिनिटी के बीच में आपका 0 आ रहा है ना, तो 0 आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। समझ गए ऑल ऑफ यू? यस, चलते हैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो इसका मीनिंग भी क्या हुआ आपका? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल एंड अप टू व्हाट? इन्फिनिटी। x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, और बड़ा कितना हो सकता है?
you know that its maximum value infinity is there. So 2 to infinity guys, 2 to infinity. तो ऑब्वियसली जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसके बीच में तो जीरो भी नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों सबके सब पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं. तो यस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, आप समझ रहे हो सीधी सी बात. यस इट विल ऑल्सो बी टेकन हियर एज 2 इज इंक्लूडेड, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, ऑब्वियस सी बात है. यस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 कॉमा इन्फिनिटी. व्हाट अबाउट फोर्थ वन गाइस, यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन इज एक्स लेस देन -1. यस लेस देन -1, सो एक्स बिलोंग्स टू -infinity to -1. Yeah, now if you square it, so -1 और -infinity के बीच में 0 आता है, so 0 will be the minimum and that will be included here, and obviously उसमें -infinity का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +infinity. So yes, +infinity. X square belongs to 0, infinity. Similarly guys, your fifth one ऐसा ही है, -5, -1. Guys you try all this, मैं तो कहूँगा आप इसको ट्राई करिए. Yes, -5, -1, इसमें 0 इन बिटवीन नहीं आता, तो ऑब्वियसली स्क्वायर करोगे, आप देख ही लो. चलो तो एक एग्जाम्पल इसका भी, x बिलोंग्स टू -5, -1. Yes, so your values are what, -5, -4, -3, -2, -1, isn't it? कौन कौन से वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, -5, -4, -3, -2 and -1. Yeah, boundary values are also included here. So guys, if you square it, -5 का स्क्वायर 25 और -1 का स्क्वायर +1. So 1 is the minimum value you are going to get here and 25 is the maximum value. So obviously your x square belongs to 1 to 25 and since वो values भी involved थे आपके ब्रैकेट में x में, तो यहाँ पे ये इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा. और इसी तरीके से 3 और 6 के बीच में गाइज, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो ऑब्वियस सी बात है 9 to 36 एंड ऑब्वियसली 9 और 36 को इन्वॉल्व नहीं करना है. -2, 3, यस 7th वन, माइनस योर x बिलोंग्स टू -2, 3. फ्रेंड्स यहाँ पे -2 और 3 के बीच में 0 आता है, -2 और 3 के बीच में 0 आता है, सो दैट्स वाई x का स्क्वायर करोगे, सो 0 विल बी द मिनिमम वैल्यू, बिकॉज स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. सो ऑब्वियसली जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है सबका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो उन सब में मिनिमम क्या आएगा आपका 0, क्योंकि -2 और 3 के बीच में 0 आता है ऑब्वियसली. और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, या 9 विल बी इंक्लूडेड. एंड ऑल्सो आपको पता ही है कि -2 और 3 के बीच में 0 आया था, तो 0 तो था, वो तो आपके इंटरवल में था, x बिलोंग्स टू दिस, तो था वहाँ पे x का वैल्यू 0 था, उसका स्क्वायर भी रहेगा. सो यस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल. सो योर x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0, 9. एंड सिमिलरली -3, इन्फिनिटी फ्रेंड्स, -3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्क्वायर करोगे, नेगेटिव सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, 0 विल बी द मिनिमम अगेन एंड इन्फिनिटी है, दैट्स वाई क्या होगा, इन्फिनिटी विल बी द हाईएस्ट वैल्यू एंड 0 विल बी इंक्लूडेड. गाइस डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे आपका 0 था, 0 इसमें है, 0 इस इंटरवल में है, दैट्स वाई स्क्वायर करने पे 0 मिनिमम तो वो इंक्लूड हो जाएगा. और इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, वी डोंट नो दैट, दैट्स वाई इट्स ओपन ब्रैकेट. सो योर एक्स स्क्वायर belongs to 0, infinity. Okay guys, we'll do the next question now. Okay friends, our second question here, find the values of 1 upon x for the given values of x, law of reciprocal. Yes friends, आप एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा उसे अच्छी तरह से. 1 upon x हमको फाइंड करना है. ओके सो फर्स्ट वन, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका एक्चुअल मीनिंग, इसके दोनों तरफ आप पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए कि x की दोनों तरफ वैल्यूज कौन कौन से हैं. सो आपका जो x है दैट इज ग्रेटर दैन 3. सो ऑब्वियसली पता नहीं किससे लेस है, तो मैक्स टू मैक्स इन्फिनिटी. यस, x इज ग्रेटर दैन 3 से बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी. सो गाइस नाउ रेसिप्रोकल चाहिए आपको. सो 1 upon x, 1 upon infinity and 1 upon
3। सो गाइस आप समझ रहे हो, जब दोनों का साइन सेम हो, ए और बी दोनों का साइन सेम हो, तो फिर उल्टा हो जाता है। आई मीन इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, सो आप जानते हो 1/∞ का मतलब 0 होता है, दैट इज़ मिनिमम, ये सबसे ग्रेटर है, तो 0 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 1/3 सबसे बड़ा है, सो आपका जो 1/x हुआ इट्स ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1/3, तो आप कह सकते हैं 1/x बिलोंग्स टू 0 to 1/3। यस, ओके फ्रेंड्स। सेकेंड वन इज x लेस देन -2। यस, फिर से वही बात, उसकी दोनों साइड पहले डिसाइड करो कि x के दोनों साइड में कौन कौन है। सो x इज लेस देन -2, लेस देन -2। अब बड़ा किससे है, यस, -∞। x कहाँ पे आएगा, -2 से कम और -∞ से ज़्यादा। सो गाइज फिर से वही बात, आप जब दोनों का साइन इस समय फिर से सेम है, ये भी -2 भी नेगेटिव, ऑब्वियसली उसके लेफ्ट में भी नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगे, साइन सेम है, तो यस इसका रेसिप्रोकल आई मीन 1/x इसका उल्टा हो जाएगा 0 और इसका उल्टा हो जाएगा यस -1/2। लेकिन आप समझ रहे हैं साइन क्या होने वाला है, यस साइन इज गोइंग टू चेंज, मतलब -1/2 कम है और 0 ज़्यादा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x बिलोंग्स टू -1/2 to 0। और आप बोलेंगे सर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही क्यों है, भैया उसने हमको वही दिया ही है, उसने हमको ओपन ब्रैकेट ही दिया हुआ है, तो अभी कुछ चेंजेस नहीं है फिलहाल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड वन। व्हाट इज द थर्ड वन हियर? थर्ड वन गाइज, इट इज x बिलोंग्स टू -1,3 एंड -0। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मेरा जो x है, यस -1,3 उसमें से 0 को निकाल दीजिए। यस, तो आपका जो x बनता है फ्रेंड्स वो ऐसे बनता है, -1 से लेके 0 को निकाल देना है, यूनियन 0 से लेके 3, क्योंकि आप समझ रहे हो यहाँ पे 0 तो -1 के बीच में ही आएगा, सो हेंस आपका -1,0 यूनियन 0,3। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो फ्रेंड्स आपको पता है अब आपका 1/x क्या होगा फिर, यस इसके लिए क्या हो जाएगा, यस 1/0 इट विल बी -∞, बिकॉज लेफ्ट साइड रहेगा ना, ये आपका 0 जो है वो आपका 0 से कम है, एक्चुअली ये नेगेटिव में जाएगा, ये समझ रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू रहेगा फिर, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू है जो 0 से कम है। यस, बिकॉज हम -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग लेफ्ट साइड से, तो यस इसका रेसिप्रोकल जाएगा 1/0, लेफ्ट हैंड साइड का इन्फिनिटी माइनस होता है, एंड कॉमा इसका हो जाएगा 1/-1 विच इज़ -1। सिंस -1 को नहीं लिया गया है दैट्स वाई यहाँ पर ओपन ही रहेगा। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एकदम सिंपल है गाइस, इस तरीके से और ऐसे हो जाता है, समझ रहे हैं। यस, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज़ कॉल्ड व्हाट, इन्फिनिटी। एंड अगेन 1/3 नहीं लिया गया तो उसका 1/3 भी नहीं लिया जाएगा, हियर इट इज़ व्हाट, यूनियन। सो आई थिंक और आई होप यू अंडरस्टूड, यू आर वेल अंडरस्टूड विद दिस वन। अगर थोड़े भी डाउट्स रह गए फ्रेंड्स, आप फिर से जाके अपने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए फिर से वीडियो को रिवाइंड करके, नहीं तो हम और भी क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया हुआ है। मैं आपका 4th वन दिखा देता हूँ। 4th वन क्या बोल रहा है, योर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5। फ्रेंड्स आई कैन राइट दिस से 2,5 इट्स नॉर्मल ना, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या हो जाएगा फिर, यस 5 का 1/5, 2 का 1/2 और 1/x उसके बीच में आ जाएगा। कहने का मतलब आपका जो x है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, और ये जो आपका 1/x है, ऑब्वियसली ऐसा करने से साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है आपका। सो व्हाट विल बी योर आंसर हियर, 1/5 मिनिमम है, 1/2 आपका मैक्सिमम है, सो योर 1/x बिलोंग्स टू दिस 1/5, 1/2। ओके फ्रेंड्स,
पांचवा देखते हैं, -5, -1. योर x बिलोंग्स टू -5, -1. अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेंड्स? इसका मतलब क्या हुआ? योर x इज ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डोंट फॉरगेट यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है. क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब इक्वल भी है, मतलब x का वैल्यू -5 भी हो सकता है. एंड लेस देन -1 मतलब -1x नहीं ले सकता. ओके फ्रेंड्स, इसका हम रेसिप्रोकल, दोनों अगेन सेम साइन है. दोनों का जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, आपको समझ में अच्छी तरीके से पता है, आपको अच्छे तरीके से आता है ये. येस, इट विल बी -1/5. इसका रेसिप्रोकल -1/-1 और ये 1/x और साइन विल गेट चेंज हियर. तो यहाँ पे रह जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन. सो व्हाट शुड बी योर आंसर फ्रेंड्स? येस, -1 आपका मिनिमम है. -1 से लेके -1/5, दिस इज क्लोज्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन. सो योर 1/x बिलोंग्स टू दिस. एंड गाइज वी हैव अ फाइनल क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. योर x बिलोंग्स टू, या दिस इज द लास्ट वन, लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी थी. यस, -3 और 4 के बीच में 0 है, तो आप समझ गए होंगे. यह डायरेक्टली गिव द आंसर. यस, 1/x बिलोंग्स टू, कम ऑन गाइस, -3 लेफ्ट में है, 4 राइट में है, तो लेफ्ट वाला सबसे कम क्या रहेगा आपका? -3 टू इन्फिनिटी. या तो अभी काम कर लीजिए ना, इसको दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लीजिए. कैसे? -3 टू 0 एंड 0 टू 4, ये दो पार्ट में आप इसको ब्रेक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, इजंट इट? -3 से 0, 0 से लेके 4, या सो -3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 विच इज -∞, बिकॉज लेफ्ट साइड में जाएगा ना ये, और -1/3 हो जाएगा ये. दिस इज, सॉरी, दिस इज यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो इसको हम ले लेते हैं. एंड फ्रेंड्स, यूनियन इसी तरीके से इसका भी करना है. कैसे? पहले 4 का रेसिप्रोकल, इट विल बी 1/4 एंड डोंट फॉरगेट 4 इज इन्वॉल्व हियर, तो इट विल बी टेकन. एंड यहाँ पे आएगा 1/0 का, इट विल बी +∞. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप निकालेंगे इसका. सो गाइज, आपको इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आप अपनी टेक्स्ट बुक में से, मैं फिर से वही कहूँगा, अपनी टेक्स्ट बुक में जाइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पड़े हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करिए. ये सब बेसिक चीज़ें हैं, फटाफट हमको ये सब फाइंड करने आना चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स हैं, इसको हमें दूर करना चाहिए. आप इसे बार बार रिवाइज़ करिए. डाउट होता है फिर से वीडियो को देखिए, और फिर भी कुछ भी और डाउट्स मिलते हैं आप अपने भेज दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में. मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सॉल्व करके आपको समझा दूंगा. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.